Today we have discussed about Oomycota phylum. Earlier class we did study about all phylums, classifications like that. Repeat domain Eukarya. Then further divided in three kingdoms: fungi. Second one Promista. Third one is Protista. First one is fungi, in which are 8 phylum like that. A B C Z. A B C Z. किसी को प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज कर सकते हैं. आवाज नहीं आ रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज कर सकते हैं. ओके. ए बी सी जेड. ए फॉर एस्को माइकोटा. बी फॉर बेसिडियो माइकोटा. सी फॉर काइटिडियो माइकोटा. जेड फॉर जाइगो माइकोटा. जी बी एन एम 4 हमने पहले पढ़ लिए. ए बी सी जेड. True fungi kingdom, fungi in which 8 phylum are included, in which A B C Z, G B N M. A Esco, B Basidio, C Chytidio, Z Zygomycota. Then Z Gleameromycota. B Blastocladiomycota. Blastocladiomycota. N for Neocalimestigomycota. M for माइक्रोस्पोरिडिया. ग्लोमेरोमाइकोटा, जो ग्लो मार रहा है, एक ट्रिक है. ग्लोमेरोमाइकोटा, ब्लास्टोक्लेडियोमाइकोटा, नियोकैलिमेस्टिगोमाइकोटा एंड माइक्रोस्पोरिडिया. राइट. देन we have earlier discussed about Oomycota. Oomycota in which kingdom? Promista. Oomycota belong to Promista, known as pseudofungi. Difference between true fungi and pseudo fungi, or fungi and chromista. Earlier we discussed in class what is difference between fungi and chromista, like that. Chitin cell wall in true fungi, cellulose cell wall in Oomycota or pseudo fungi, chromista, zoospore. While in case of fungi, only Chytidiomycota have a zoospore. So briefly, I described that introduction. Most developed specialized order of class Oomycetes, order comprising chiefly parasitic lower fungi. It also known as lower class fungi because of have equally biflagellate zoospore. Equally biflagellate zoospore. While in case of Chytidiomycota में क्या है? Only single flagella होगा posterior, यानी पीछे की साइड single flagella होगा. जबकि अगर हम Oomycota में देखते हैं, यानी Chromista में देखते हैं, तो 2 flagella होंगे, biflagellate zoospore and Conidia, which either germinate directly, act as a sporangia and contain the family Albigoginaceae, Pernospororaceae and Pitheaceae. Most of in case sporangia are asexual. In case if higher temperature, अगर high temperature होगा तो germination direct germ tube भी बन सकती है और as a behave as a conidia. और अगर low temperature रहा तो zoosporangium convert into zoospore. Aquatic, ये normal character है Oomycota group के. We discussed earlier in class, but few discussion. Aquatic, I told earlier in class, aquatic यानी जो पानी में रहते हैं, amphibious जो दोनों में रहते हैं, और terrestrial species जो कि अपने terrestrial में रहते हैं, यानी स्थल पे रहते हैं, जल और स्थल पे रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं. Many species are destructive parasites of economically important plants like that. Downy mildew, borax mixture. कब आया borax mixture? Downy mildew of grapes. It's a very economic important disease. Downy mildew of grapes, downy mildew of bajra. White rust is a very serious dangerous disease in our Rajasthan especially. So many destructive Pythium, Phytophthora, late blight of disease, late blight of potato.
When start of plant pathology? Plant pathology start when a late blight disease of potato occur. जब late blight of potato आया तभी plant pathology की starting हुई. तो this is very important group, Umycota group. This fungi of the order Pernosporales, in which we have earlier discussion about like that Umycota, phylum Umycota, then class Umycetes, and then three groups are subclasses are important: Rhaphidiomycetidae, Saprolegionamycetidae, and third one is a Pernosporomycetidae. Rhaphidiomycetidae की अगर हम बात करते हैं तो वो इतना important नहीं है हमारे aspect of plant disease. Rhaphidiomycetidae subclass in which Rhaphidiales. Saprolegionamycetidae की बात करें अगर हम तो Saprolegina, Aphanomyces. Saprolegina is a very important. Saprolegina कुछ important character हैं वो थोड़ा सा एक बार और वापस describe कर देती हूँ. Saprolegina like that in which we have discussed earlier in class. HC Dubey is a best book. नेट के चक्कर में नहीं रहें, बुक से पढ़ाई करें. Saprolegina mycetidae in which leptomitals कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, नेट के एग्जाम में, ARS के एग्जाम में. विच फंगस इज सीवेज फंगस? कौन सी फंगस सीवेज फंगस है? लेप्टोमाइटस. लेप्टोमाइटस HC दुबे वाली बुक लेकर बैठे बच्चे, जो भी अपनी बुक है प्लीज ओपन द HC दुबे एंड इंट्रोडक्शन टू फंजाई. Leptomytis is a sewage fungi. Then second is Apodacyla. Apodacyla is a species belong to Umycota which have some chitin. Many time question in asking in NET, ARS. Which fungus belong to Umycota have a chitin cell wall? क्योंकि ये हम जानते हैं chitin cell wall किसमें होती है? फंगस में, नॉट उमाइकोटा. उमाइकोटा में क्या होता है? सेलुलोज. सो एपोडकाइला और एकाइला एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें क्या होता है? काइटिन. एक्सेप्शन है ये, तो प्लीज मैक स्टार अंडरलाइन. देन सेप्रोलेजिना की बात करें अगर हम, वाटर मोल्ड है. सेप्रोलेजिना इज ए वाटर मोल्ड. देन सॉइल इनहेबिटेंट. जूस्पोरेंजियल प्रोलिफरेशन we discussed earlier. जूस्पोरेंजियल प्रोलिफरेशन क्या है? जूस्पोरेंजिया होता है वो एम्प्टी हो गया, एक बार जूस्पोर उसमें से रिलीज हो गए, देन वापस उसी में से एक लेयर बनेगी जूस्पोरेंजिया की और वापस जूस्पोर निकलेंगे. तो यानी उसमें से क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन. डायमॉर्फिज्म ऑफ जूस्पोर, डिप्लोनेटिज्म, यानी 2 स्टेज होगी जूस्पोर की. प्राइमरी स्टेज रेस्टिंग स्ट्रक्चर, देन सेकेंडरी जूस्पोर. प्राइमरी स्पोर कौन सा होगा? किस शेप का होगा? पियर शेप का, यानी नाशपाती खाई है, नाशपाती शेप का. फिर वापस रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा. देन सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा? किडनी शेप के बन जाएंगे. वो क्या बोलते हैं जिन्हें? रेनिफॉर्म. किडनी शेप जूस्पोर बाई फ्लैजेलेट. डिप्लोनेटिज्म. आपके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, विच फंगस इज अ डिप्लोनेटिज्म करेक्टर, डायमॉर्फिज्म करेक्टर? विच फंगस pre-current proliferation character? Water mold. So please make underline. Then Saprolegina, primary sugar fungi, also known as. Here is Aphanomyces. Aphanomyces is a fungus that cause disease in fish or humans face deteriorate also. Then अब हमारा आता है पर्नोस्पोरोमाइसिटिडी, जो हमारे काम की चीज है. पर्नोस्पोरोमाइसिटिडी हैविंग 3 ऑर्डर. फर्स्ट इज पीथियल्स, सेकंड इज पर्नोस्पोरल्स, थर्ड वन इज एल्बिगोजिनस. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट aspect of plant disease. Our aspects like that pethals, in which many species belong, but only important Pythium. Pythium diberinum, Pythium afenidermatum. Okay, so Pythials belong Pythium. Pernosporals belong
Phytophthora. Please be concentrate. Phytophthora not belong to Pythias order. It is belong to Pernosporales, similar to Pernosporales, more character similar to Pernosporales, not Pythias. Pernosporales में क्या क्या आएगा? Phytophthora हो गया अपना all downy mildew disease, like that plasmapara, Bloomeria, Basidiospora, Sclerospora, Pernospora, all belong to Pernosporales order. Then next, albigoginales. Albigoginales क्या होगा? Albigoginous white rust disease, Cystopus candidus, recently known as Cystopus candidus, albigo candida. Then करेक्टर क्या है? कंटिन्यू ऑब्लिगेट पैरासाइट. अब कौन कौन से हैं? ऑल पर्नोस्पोरल्स. कौन कौन से हैं इनमें से? डाउनी मिल्ड्यू डिजीज. प्लीज कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैनी टाइम आस्क्ड इन एग्जाम, बीजी, ज़ैरफ, AO, AO, इवन ARS, नेट. which pathogen is belong to obligate parasite? In 2014 or 2016 ARO paper, in which rust disease किसमें आती है? Obligate parasite. Not seriously, rust disease belong to obligate parasite. Second one, downy mildew disease. Third one, powdery mildew disease. Not grow saprophytically. आप इसे कल्चर में नहीं ग्रो कर सकते, इसे हमेशा होस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है. ऑब्लिगेट पैरासाइट जानते हैं आप? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव करना. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेट पैरासाइट. और इसी फैकल्टेटिव पैरासाइट पीथियसी saprophytically, cell wall we discussed earlier, cellulose, not chitin. Some exception, Equila, Epodecyla have a chitin cell wall. Few exceptions, but majorly cell wall of cellulose. Sorry, cell wall is cellulose, in which sterol biosynthesis. True fungi have a sterol, while in case of Promista, ergosterol, not a true sterol. सोमेटिक स्ट्रक्चर, माइसीलियम कैसा होगा? एसेप्टेट होगा, हमने बहुत पहले क्लास में पढ़ चुके हैं. ओमाइकोटा के माइसीलियम कैसा होगा? एसेप्टेट, सिनोसिटिक. इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, इंट्रा और इंटरसेलुलर. इंटरसेलुलर मीन्स टू सेल, बिटवीन टू सेल. इंट्रा मीन्स विद इन सेल के अंदर. ठीक है. जब इंटरसेलुलर होगा तो होस्टेरिया बनेंगे, इंट्रासेलुलर होगा तो एपिसोरिया बनेंगे. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फाइटोप्थोरा में होस्टेरिया बनेंगे, जबकि पीथियम में एपिसोरिया बनेंगे. बिकॉज ऑफ पीथियस इंट्रासेलुलर है, फाइटोप्थोरा इंटरसेलुलर है. नेक्स्ट, in which sexual reproduction, in which nothing like that, in which male organ as an antheridium, female organ is a oospore, oosphere, oogonium as a female organ, male organ is the antheridium. When a coin, here is a term heterothelic or homothelic. If two nuclei belong to same hyphae, same thallus, same somatic body, there is a homothelic, different derived, different thallus, heterothelic. In antheridium and oogonium, when joined, fuse, fertilization tube emerge from antheridium, is a passes nucleus into female organ antheridia by fertilization tube. Then what happen? Meiosis, karyogamy. अब बात आती है प्लाज्मोगेमी और कैरियोसिस क्या है. प्लाज्मोगेमी क्या है? Whenever fusion of two cells is a plasmogamy. Karyogamy, two nuclei, fusion of two nuclei. Meiosis क्या होता है? Reductions, haploid cells में convert हो जाना, 4 daughter cells, zygote, then diploid oospore, then vegetative hyphae,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले क्या होगा, वेजिटेटिव हाइपी होगी, हाइपी का जर्मिनेशन होगा, स्पोरेंजिया बनेंगे, जूस स्पोरेंजियम कहते हैं जिन्हें हम, जूस स्पोरेंजियम से जूस स्पोर निकलेंगे, जूस स्पोर निकल के क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए वो स्विमिंग करेंगे, उसके बाद में वो इंसिस्ट बन जाएंगे, रेस्टिंग स्ट्रक्चर में चले जाएंगे, देन कुछ में सेकेंडरी जूस स्पोर बनते हैं जैसे कि सैप्रोलेजिना में मैंने बताया ना अभी, पियर शेप, ये पियर शेप है, ये क्या है, किडनी शेप, सैप्रोलेजिना में डिप्लोनेटिज्म होता है, डाइमॉर्फिज्म, दिस इज टर्म, देन रेस्टिंग स्ट्रक्चर एंड देन जर्मिनेशन डायरेक्ट जर्म ट्यूब और वेजिटेटिव हाइपी, ये जनरल आउटलाइन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, जूस स्पोर से, जूस स्पोरेंजियम से, रीप्लेस और टिनसेल लाइक के फ्लैजेला बनते हैं, टिनसेल एंटीरियर होगा, रीप्लेस पोस्टीरियर होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि टिनसेल और रीप्लेस किस में लेटरल फिलामेंटस होते हैं, मैग्नेटिशोम बोलते हैं इनको, देयर लेटरल फिलामेंटस इज ऑलवेज टिनसेल फ्लैजेलम प्रेजेंट, नॉट रीप्लेस। छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइफ साइकिल अगर हम, लाइफ सेक्सुअल साइकिल हम पढ़ चुके हैं, हियर इज oogamous, it is a electronic microscopic picture, please clear see in this picture, it is a oogonium, it is a antheridium male organ, it is a fertilization tube migrate nuclei into oogonium, ठीक है। होमोथेलिक हेटेरोथेलिक की हम बात कर चुके हैं, न्यूक्लाई फ्रॉम एंथ्रिडिया माइग्रेट थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब, प्लाज्मोगेमी होगा, कैरियोगेमी होगा, ऊस्पेयर इज नाउ डिप्लॉयड बन जाएगा, ऊस्पोर बनेगा, उसके बाद ऊस्पेयर के बाद क्या बनेगा, ऊस्पोर, ऊस्पोर कैसा होता है, थिक वॉल्ड, जो अलग थिक वॉल्ड ट्रिपल वॉल बाउंड, ट्रिपल वॉल लेयर, ओगोनियम, ऊस्पोर कैन रिमेन डोरमेंट, डोरमेंट, यहाँ हम कई बार बात करते हैं कि डोरमेंट स्पोर क्या है, रेस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, oospore is a sexual spore as well as is a dormant spore resting structure of oomycota. Even 5 to 10 year can resting structure. पीथीएसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ज़्यादा हम पीथीएम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, एक शॉर्ट में पढ़ेंगे पीथीएम क्या है, पीथीएम में क्या क्या मेन कैरेक्टर्स थे, उसी के बारे में पढ़ेंगे हम। Pythium in which Hosteria are not produced because of intracellular hyphae, and in which nothing like that. Sexual reproduction, Antheridia and Oogonia. Antheridia is a male organ, Oogonia is a female organ, fertilization tube से nuclei migrate होगा, and then karyogamy होगा, meiosis होगा, then oospore बनेगा, oospore बन के उसमें डायरेक्ट अगर हाई टेम्परेचर होगा तो डायरेक्ट जर्म ट्यूब बन जाएगा और वो बिहेव कैसे करेगा, कॉनिडिया की तरह, और अगर लो टेम्परेचर होगा तो वो जूस स्पोरेंजिया कन्वर्ट होके उसमें जूस स्पोर रिलीज हो जाएंगे। हम बात करें सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर किसे कहते हैं, जो जू स्पोरेंजियम हैविंग जू स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम बनेगा, जू स्पोरेंजियम से अब मेन कैरेक्टर क्या है पीथीएम का, अभी एग्जाम में आया था, एओ के एग्जाम में पूछा गया कि वेसिकल्स किस में बनते हैं, वेसिकल फॉर्मेशन इन विच फंगस, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, वेसिकल्स फाइटोप्थोरा में, उनको ये तो पता है कि ओमाइकोटा से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन, और डेफिनेटली फाइटोप्थोरा और पीथियम में से इतना कंफ्यूज हो गए, तो वेसिकल्स प्लीज मैकेंडरलाइन स्टार मैकेस्टार वेसाइकल्स बनेंगे सबसे पहले, वेसाइकल्स बनने के बाद में जूर स्पोरेंजिया उसको पुश करेगा, मतलब उसको थोड़ा सा दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, प्रेशर लगने पे उसकी वॉल क्या होती है, बहुत ही डेलिकेट होती है, तो वो क्या होती है, रप्चर हो जाती है, रप्चर होने के बाद क्या होते हैं, जूस स्पोर उसमें से लिबरेट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, रिलीज होने के बाद में क्या करेंगे, वो थोड़ी देर स्विमिंग करेंगे, स्विमिंग करने के बाद में वो रेस्टिंग स्ट्रक्चर में चल जाएंगे, रेस्टिंग स्ट्रक्चर में जाने के बाद में या तो डायरेक्ट जर्म ट्यूब की तरह बिहेव करेंगे अगर हायर टेम्परेचर होगा तो, और अगर लो टेम्परेचर हुआ तो जूस स्पोरेंजियम कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक इज नो प्रॉब्लम हियर। देन हियर इज टर्म पैरागाइनस और एम्फीगाइनस, हेटेरोथेलिक समझ में आ गया, होमोथेलिक समझ में आ गया, सेम हाइपी से बिलोंग करेंगे तो होमोथेलिक होगा,
डिफरेंट से बिलोंग करेंगे, यानी मोनोसियस और डायोसियस पढ़ा होगा आपने यूजी में। मोनोसियस यानी और डायोसियस यानी डिफरेंट डिफरेंट उस पे होना, ठीक है, हाइपिया डिफरेंट सोमेटिक सेल्स पे होना। और मोनोसिस यानी दोनों एक ही जगह होना, उभयलिंगी, और बोलते हैं ना मोनोसिस मतलब फीमेल और मेल ऑर्गन सेम थैलस पे होना। देन सेकंड टर्म पैरागाइनस और एम्फीगाइनस। Pythium is a paragynous. Paragynous means laterally female, sorry, arise male organ laterally female organ, यानी फीमेल ऑर्गन के साइड से मेल ऑर्गन का इमर्ज होना, निकलना उसके साइड से। देन नेक्स्ट है पर्नोस्पोरल्स। पर्नोस्पोरल्स में क्या है इंपॉर्टेंट? पर्नोस्पोरल्स फाइटोप्थोरा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, Iris famine, 1845. Iris famine is a important, is a mother of plant pathology. कब start हुआ plant pathology? जब late blight of potato आया। Even millions of people starvation, million of people migrate, million people die due to starvation of because of staple food is potato. उनका मेन फूड क्या था? पोटैटो। आज बिहार की बात करें, अदर स्टेट की बात करें, जहाँ पे चावल क्या है, राइस क्या है, एक मेन स्टेबल फूड है। आज हम राजस्थान की बात करें, क्या खाते हैं हम सब लोग ज्यादा? गेहूं। अगर गेहूं में बहुत ज्यादा महामारी आ जाए, रस्ट मान लीजिए, या कोई वॉट एवर डिजीज अकर्स, हम क्या करेंगे? व्हाट वी डू? नथिंग। हम एक दो दिन खा सकते हैं पास्ता, अदर्स चीजें, जैसे कोई कुछ भी बना लिया, लेकिन गेहूं हमारा क्या है? स्टेबल फूड है। हम नहीं, वी कांट सर्वाइव विदाउट व्हीट। सो यूरोप में क्या था? आलू क्या था? पोटैटो इज ए स्टेबल फूड। कांट सर्वाइव, माइग्रेट, मिलियन पीपल्स डेथ ड्यू टू स्टारवेशन, ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब मेन कैरेक्टर क्या है फाइटोप्थोरा के, वो बात करते हैं हम। एक तो पेपिलेट बनता है इसमें। क्या बनता है? पेपिलेट। पेपिलेट क्या होता है? अगर हम चलते हैं एक सेकेंड, Phytophthora, please be concentrate. Here is a, you have clear seen this picture. Here is a papillate, apical thick walled empty wall is a papillate. It is a, and second character is a lemon shaped sporangia. Question, many time question asked in exam, which lemon shaped sporangia occurs in which fungus? Lemon shape के sporangia किसमें बनते हैं? तो क्या होगा आंसर? फाइटोप्थोरा। ठीक है, पेपिलेट किसमें बनता है? पेपिलेट फाइटोप्थोरा में। देन sexual and asexual reproduction similar here, like that Phytophthora, like that Pythium. It is very important. Many times question asked in exam. What is temperature, sporangial production and need? कब तो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं, कितने टेम्परेचर पे, और कितने पे जर्म ट्यूब बनती है। हम बात कर रहे हैं बार बार कि हायर टेम्परेचर पे जर्मिनेशन ट्यूब बन रही है, कम पे स्पोरेंजिया बन रहे हैं, तो क्या टेम्परेचर है वो? तो स्पोरेंजिया में लो टेम्परेचर होता है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, और हायर टेम्परेचर अबव 24 डिग्री सेल्सियस। whenever 24 higher 24 degree Celsius, germination direct germ tube behave as a conidia, or in lower temperature 17 to 20 या 18 to 20 behave as a sporangia. ठीक है, then a low temperature of 12 degrees Celsius favor for zoospore production. Very important, please underline. हमारे क्वेश्चन खुद के, मेरे खुद के एग्जाम में आया हुआ है, जूस्पोर प्रोडक्शन कितने डिग्री टेम्परेचर पर होता है? एज इट इज लाइन उठ के आई थी एग्जाम में से, 12 डिग्री सेल्सियस फेवर फॉर जूस्पोर प्रोडक्शन। ठीक है, देन फिर होस्टेरिया बनेंगे इधर, सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ एम्फीगाइनस होगा, पैरागाइनस भी होगा, लेकिन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में एम्फीगाइनस होगा। अब आप सोच रहे होंगे एम्फीगाइनस क्या होता है? एम्फीगाइनस एक बार इसमें अगर होगा तो मैं देखती हूँ। लेमन शेप के स्पोरेंजिया बनेंगे, डिटैच होंगे इजीली, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होगा। यह क्लियर सेंड दिस पिक्चर, लेमन शेप पेपिलेट,
पोस्टेरिया ऑल्सो क्लियर, ये स्पोरेंजियोस्पोर होता है प्लीज, ये स्पोरेंजियोस्पोर होगा, ये स्पोरेंजिया होगा। आपके माइंड में आ रहा होगा व्हाट इज स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियोफोर, हियर इज स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियोफोर दिस इज, एंड दिस इज स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम। और ये इसके अंदर क्या है, जू स्पोर। जब ये ब्रस्ट होता है तो इसमें से लिबरेट क्या निकलते हैं, क्या रिलीज होते हैं, जू स्पोर। पोस्टेरिया क्या काम आता है, एप्रिसोरिया इज अटैच टू द होस्ट। एप्रिसोरिया क्या काम आता है, होस्ट को अटैच करने में और पेनिट्रेट करने में, वाइल पोस्टेरिया अब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट। इट इज ए पार्ट ऑफ फंगस। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से खींचा गया फोटो है, डेसिडियोस यानी इजीली डिटैच होने वाला। कैसा है, लेमन शेप का है ये देखो, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, कैसे जूस पोर रिलीज हो रहे हैं इसमें से, देखिए। ओके, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एम्फीगाइनस और पैरागाइनस की बात कर रही थी, जहां पे मैं हमने पैरागाइनस पढ़ा पीथियम में। पैरागाइनस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैरागाइनस मीन्स मेल और फीमेल लिटरली यानी सेम सिमिलर स्ट्रक्चर में हो, लाइक दैट, उसके जस्ट laterally, and in amphigynous whenever male organ bottom side yani beneath of the female organ is a amphigynous characteristic of Phytophthora infestans। इसके अलावा मुझे लग रहा नहीं है और तो कोई इंपॉर्टेंट है, सब हमने क्लियर कर लिया है। अब आते हैं हम डाउनी मिल्ड्यू जेनेरा, परनोस्पोरा। परनोस्पोरा की बात करें हम, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, इंपॉर्टेंट करेक्टर परनोस्पोरेसी। परनोस्पोरा इन विच बिलोंग टू मैनी पैथोजेंस। परनोस्पोरा रिलेटेड जेनेरा ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे, ध्यान रखना। ऑल पैथोजन कॉज डाउनी मिल्ड्यू डिजीज। परनोस्पोरा क्लियर सीन दिस पिक्चर। Pernospora in which downy mildew, many pathogens, plasmapara, pernospora, plumeria, basidiospora, sclerospora। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला कौन सी डिजीज कॉज करता है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। प्लाज्मापोरा विटिकोला, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। एंड many disease cause in which important it is a hairy fungi, cottony growth। डाउनी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, cottony growth। in which importance plasma para क्या है, plasma para in which is a typical character of plasma para in which स्पोरेंजियोस्पोर अराइज एट राइट एंगल। राइट एंगल पे स्पोरेंजिया आएंगे, वो भी 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री इसका टिपिकल करेक्टर है प्लाज्मा पारा के, 90 डिग्री पे। और सेकंड इज इरेगुलर। देन हम बात करते हैं राइट एंगल परनोस्पोरा की। परनोस्पोरा में कैसे होंगे, डिक्टोस्मली, ये देख लीजिए, देखिए परनोस्पोरा है डिक्टोस्मली। ये देखो, डिक्टो का मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाना, ठीक है। डिक्टोमसली ब्रांच होगा, यानी ये क्लियर सीन दिस पिक्चर, डिक्टोमसली 2 पार्ट में हो गया, ठीक है। यहाँ स्पोरेंजिया बियर होंगे, इसके टैपर्ड होगा एपेक्स पे। डिक्टोमसली ब्रांच होगा, स्पोरेंजियोस्पोर टैपर टू फाइन पॉइंट। ये देखिए लास्ट में कैसे इनके टेपर्ड और फाइन पॉइंट है। देन सूडोपर्नोस्पोरा, अगर दोनों साइड में स्पोरेंजिया होते हैं तो परनोस्पोरा कन्वर्ट इनटू सूडोपर्नोस्पोरा। दोनों ब्रांचेस पे अगर सिमिलर स्पोरेंजिया होते हैं तो वो क्या होता है, सूडोपर्नोस्पोरा। देन ब्रेमिया, ब्रेमिया इज ए आल्सो परनोस्पोरा लाइक स्ट्रक्चर, बट इसमें क्या होगा, ये देखिए, ये क्या है, ये परनोस, ये है सॉरी ब्रेमिया। ब्रेमिया दिस इज ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये कटोरी लाइक स्ट्रक्चर बन चुकी है, कटोरी लाइक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ स्पोरेंजिया बियरिंग है, ये परनो है, ये ब्रेमिया है। एंड देन बेसिडियोस्पोरा, ये बेसिडियोस्पोर है। बेसिडियोस्पोर ऐसे ही होते हैं, बेसिडियम होता है क्लब लाइक शेप्ड, और ये बेसिडियम है, बेसिडियम इसीलिए इसका नाम बेसिडियोस्पोरा कहा गया है। बट ये बेसिडियोस्पोर में नहीं आता, नॉट कंफ्यूज।
बेसिडियम शेप का जरूर होता है और स्पोरेंजिया बियरिंग होता है, ठीक है। देन पहला डायग्राम अपना बेसिडियोस्पोरा का है, दूसरा अपना है डिक्टोमसली ब्रांच पर्नोस्पोरा का है, थर्ड है अपना ब्रेमिया का, हियर दिस इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। So many pathogens are like that. Important diseases, Plasmodium viticola and Sclerospora graminicola, in which important similar sexual reproduction similar here. Antheridium and Ogonium as a male and female organ. Fertilization tube बनेगी, न्यूक्लाई माइग्रेट होगा, माइग्रेट होने के बाद में क्या होगा, जाइगोट बनेगा, कैरियोगेमी होगा, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस होगा, फिर ओवस्पोर बन जाएगा, ओवस्पोर बनने के बाद में हाई टेम्परेचर होगा तो जर्मी ट्यूब बनेगी डायरेक्ट, अगर लो टेम्परेचर होगा तो जूस्पोरेंजियम बन जाएंगे। सेम ईयर जूस्पोरेंजियम मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेम ईयर। बरगंडी मिक्सचर कब आया, सॉरी बॉडेक्स मिक्सचर किसके रिगार्डिंग आया, किसने दिया बॉडेक्स मिक्सचर और किसके रिगार्डिंग आया, पीएमए मिलाडेट, पियर माइकली मिलाडेट। एंड स्क्लेरोस्पोरा ईजे बटलर ने, स्क्लेरोस्पोरा डाउनी मिल्ड्यू इन बाजरा कब दिया, ईजे बटलर 1907 में, 1907। देन oospore, sexual spore is oospore, asexual reproduction is zoospore। ऑप्टिमम टेम्परेचर 18 से 23 डिग्री सेल्सियस है जूस्पोरेंजियम के लिए। देन स्क्लेरोस्पोरा, देन एल्बिगोजेनेसी, एल्बिगोजेनेसी हियर, एल्बिगो इज ए ऑब्लिगेट प्लांट पैरासाइट। इस बार हमने सरसों में बहुत सारी देखी होगी, व्हाइट रस्ट आपने देखी होगी, फील्ड में गए होंगे तो ऑब्लिगेट प्लांट पैरासाइट है। व्हाइट रस्ट, ब्लिस्टर भी बोलते हैं इनको, फफोले जिससे हो जाते हैं। स्पोरेंजिया डिटैच, क्या होता है, स्पोरेंजिया इसके डिटैच होंगे और विंड के थ्रू डिसेमिनेट होंगे। मॉइस्चर अगर अवेलेबल है तो 4 से 12 जूस प्रोड्यूस होंगे डायरेक्टली, जम टू, सब ये करेक्टर all all pernosporals, this character, if high temperature jump tube and low temperature is a sporangium, in which a diagram it is a sporangiospore like that, albigogenes, Ugonium and Anthridium, sexual reproduction same होगा, in which albigogenes, in which sexual reproduction and asexual reproduction, होस्ट सेल्स में क्या होगा, होस्टेरिया बनेंगे, किस शेप के, नॉब शेप के, नॉब शेप के होस्टेरिया बनेंगे। एंड इसमें होगा शायद डायग्राम, चलो इसमें नहीं है कोई बात नहीं। नॉब शेप के होस्टेरिया बनेंगे, इंट्रासेलुलर हाइपी है ये। देन रप्चर होंगे स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया है, ये क्या होंगे, ये रप्चर होंगे। रप्चर होके किस मैनर में होंगे, बेसिपिटल मैनर, यानी यंगेस्ट कहाँ होगा, बेस पे, ओल्डेस्ट और टॉप पे। कुछ करेक्टर्स हैं इसके, क्लब शेप के स्पोरेंजियोस्पोर होंगे, क्लब शेप्ड स्पोरेंजियोफोर होगा, ये देखिए ये क्लब शेप का स्पोरेंजियो है, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर क्लब शेप का होगा। देन थिक लेटरल वॉल होगी एंड अटैच होगा, चैन में बने होंगे स्पोरेंजिया, ये देखिए आप, ये डिसजंक्टर है बीच में जो इनको जोड़े हुए हैं, स्टेमस डिसजंक्टर। एंड सेपरेशन डिस्क करने का कई बार एग्जाम पूछा है, डिसजंक्टर क्या काम आता है, डिसॉल्व होता है वाटर से ये, और स्पोरेंजिया डिटैच हो जाते हैं। डिटैच होने के बाद में क्या होता है, ये स्पोरेंजिया सेट फ्री हो जाते हैं और एपिडर्मिस को रप्चर करके ये बाहर रिलीज हो जाते हैं। और बाहर रिलीज होने के बाद में ये एपिडर्मिस वॉल के बिलो एपिडर्मिस वॉल जब ये फट जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, तो हमने देखा होगा ना कई बार फफोले बन जाते हैं सरसों में, यानी उसकी एपिडर्मिस वॉल लेयर फट चुकी है, यही है व्हाइट फिश होते हैं ये। एपिडर्मिस वॉल लेयर हुई और सफेद पे, सरसों पे आपको सफेद सफेद फफोले दिखेंगे because of rupture of sporangia and say similar sexual reproduction, sporangia globose hexagonal होंगे, disseminate wind के थ्रू होंगे एंड बाइफ्लेजेट जेनिफॉर्म जूस्पोर होंगे, स्विमिंग करेंगे वही सिस्ट बनेगा, जाम ट्यूब बनेंगे। हाई वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, हाईपी पेनिट्रेट करेगी डीप टिश्यू सक्शन ऑर्गन, ऑनसेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोगेमी होगा, कॉन्टेक्ट होगा, क्लब शेप का एंथ्रिडिया होगा, सिमिलर फाइटोप्थोरा की तरह सिमिलर होगा। आप देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो सिमिलर ही होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं, मेनली ये है क्लब शेप के स्पोरेंजियोस्पोर बनेंगे, होस्टेरिया बनेंगे, इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड
बेसिपेटल मैनर, स्पोरेंजिया टेस्ट, डिसजंक्टर, इट इज अ डिसजंक्टर। मैं इतना जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि हमारा टाइम आउट हो चुका है, एक मिनट बची है हमारे, 1 मिनट 46 सेकेंड, क्योंकि जूम पे आप केवल 40 मिनट के लिए क्लास ले सकते हो, ठीक है। एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? हैंड रेज प्लीज। यू कैपेबल, यू एबल टू अनम्यूट ओवन सेल्फ, तुम खुद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। विकास, 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 विकास। हाँ मैडम। हाँ विकास, कुछ क्वेरी? हाँ विकास, कुछ क्वेरी? नहीं है मैडम। अच्छा, कुछ ऑनलाइन में समझ में आ रहा है? तो ऑनलाइन में समझ में आ रहा है? आ रहा है मैडम। अब हम ऑफलाइन तो ले नहीं सकते, अब हम ऑफलाइन तो ले नहीं सकते। हाँ मैडम। और एचसी दुबे बुक पढ़ते रहो, ये नहीं कि बुक एग्जाम पढ़ते होगा रहो, या ये नहीं नहीं। कि एग्जाम होगा डिफिकल्ट या है, नहीं। एग्जाम होता है, एग्जाम होता है डिफिकल्ट है तो ठीक है, पर ये तुम्हारे किसके लिए है? नेट के लिए। आगे भी तुम प्रिपरेशन करोगे, पीएचडी का एग्जाम दोगे, नेट का एग्जाम दोगे, एआरओ, डबल एआरओ है, एआरएस है। किरण, किरण कुमावत,